Good morning, Mukund. My name is Avinash Agarwal. I am the founding director of Disha Publication, and I welcome you on behalf of Disha Publication, and I congratulate you also on behalf of Disha Publication and also on behalf of lakhs and crores of students for your outstanding success in UPSC 2019 exam. What Thank makes you. what makes your success outstanding is not only that you have secured an All India rank of 54, but also that you have done it in the first attempt. That truly makes it remarkable. So in the next 60 minutes, we will talk to each other, and the basic objective is to understand your success formula. So before Mr. Mukund, we get into the center of the interview, let's start the interview with let if you can share your journey from a UPSC aspirant to a UPSC topper. तो वो जर्नी आप बताइए जरा, उसमें क्या क्या पड़ाव थे और कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ? Yes, sir. Sir, at the very outset, I'd like to thank you for inviting me to talk in this webinar and to share my thoughts. And beginning with your question, my journey for civil services started in 2016. In 2016, being from Sainik School, I was recommended for Indian Navy, but due to being medically unfit for the Indian Navy, I could not join Indian Navy. And thereafter, in 2016, sir, for the first time, I decided to join civil service. पहले तो सर जैसा कि सबको बहुत कठिन और मुश्किल लगता है, तो मेरे लिए भी बहुत ही ये चुनौती भरा हुआ डिसीजन था कि इस एग्जाम के लिए बैठना है। बहुत डर भी लग रहा था कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, बहुत टाइम चाहिए, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट भी थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। But then I said decided that I have to sit for this examination and I have to qualify it. And from the very beginning, I was very much determined to make it through in the first attempt itself, because I always had in mind that if I am going to give my attempt, it should be such a best preparation that I should be able to make in first attempt. And then from 2016 to 2019, for 3 years, I prepared for this examination. And in the beginning 1 year, it was completely like I was trying to understand the examination process, what are the kind of questions that are being asked, how to answer that. So 1 year completely went in understanding completely the process of the examination. And in the next 2 years, I prepared thoroughly for this examination very sincerely. So it was from the second year of my college, I began my preparation, and in 2 years, I made a detailed plan to complete the syllabus and complete the whole process, including the mock test. So that is the broad summary, sir. नहीं, पर मुकुंद, इतना काश अगर ये इतना सिंपल होता है। इसमें कुछ ना कुछ चीजें अभी, कुछ परतें अभी खुलनी बाकी हैं, कुछ चीजें जरूर इसमें रहती हैं। Why I'm saying so is that I wish if it was that easy. I mean, say probably lakhs and lakhs of other students would have done it. कुछ ना कुछ तो खास होगा। आप मेरे पहलू को समझें। बहुत सारे स्टूडेंट जिनसे हम मिलते हैं, बात करते हैं, वो लोग 5-5, 6-6 साल से थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट तक लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। तो आपकी तैयारी में ऐसा क्या था? मतलब आज मैं पेरेंट्स से मिलता हूं तो आप बड़े सरप्राइज होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो 9th-10th में ही अपने बच्चों को कहना शुरू कर देते हैं कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। आपने जहां तक मुझे बताया कि आपने सैनिक स्कूल से 12th की, उसके बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी डीएवी कॉलेज में पढ़ने आए, इंग्लिश ऑनर्स आपने वहां से किया, और जैसा आपने बताया कि 2016 से आपने तैयारी शुरू की, इसका मतलब सेकंड ईयर से आपने तैयारी शुरू की। Yes, sir. बट कुछ ना कुछ तैयारी में ऐसा खास होगा। आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो 4-4, 5-5 साल तैयारी करते हैं। तो ऐसा क्या खास था जो कि पहले ही टाइम में आप अचीव कर पाए? यस सर। सर अगर मैं कहूँ कुछ खास या कुछ स्पेशल जो मैंने किया, एक तो चीज़ थी सर कॉन्टिन्यूटी मैंने बहुत लंबे समय से, जब मैं तैयारी शुरू किया तो कॉन्टिन्यूटी मैंने 6 से 8 घंटा और 2 से ढाई साल तक मैंने कॉन्टिन्यूस पढ़ाई की। जो भी सर मेरा टारगेट होता था उसको बहुत ही ऑनेस्टली मैं अपने टारगेट पे कोशिश करता था कि कंप्लीट करूं। और इसके अलावा सर मैं सोर्स बहुत ही लिमिटेड फॉलो किया। मार्केट में अगर सर हम देखें तो एक सब्जेक्ट पे काफ़ी सारे सोर्स हैं। मैंने अपने सोर्स को सर बहुत सीमित रखा और एक बुक को सर मैंने 2-2, 3-3 बार जो हो सकता था मैंने रिवाइज किया, रेदर देन गोइंग फॉर
मल्टीपल बुक्स। तो सर मुझे लगता है कि कॉन्टिन्यूटी एक प्रॉपर प्लानिंग कि कैसे करना है, जो सर आगे डिस्कशन के दौरान मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने प्लानिंग किया, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, ये सर मुझे लगता है कि डिसिप्लिन्ड तरीके से ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। तो यस कुछ सर। बातें जो यहाँ से निकल के आ रही हैं, सबसे पहले आपने कहा कॉन्टिन्यूटी या फिर कंसिस्टेंसी, अगर उसे हम कह सकते कंसिस्टेंसी, हैं। राइट। मतलब रेदर देन की प्रिपरेशन में स्पाइक्स और ट्रप्स आए कि एक दिन आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आप लगातार 6 से 8 घंटे तक पढ़ते रहे। इससे पहले जो दूसरी बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही, जिसको कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, ए वेल थॉट डिटेल्ड प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज जो मैंने अभी आपकी बात से पकड़ी, वो है फोकस्ड अप्रोच। जहां पे फोकस्ड अप्रोच माने क्लैरिटी ऑफ नोइंग क्या करना है और क्या नहीं करना, जहां पे बहुत सारी किताबें रहती हैं, उधर भ्रमित ना होकर हर किताब या हर रिसोर्स के पीछे ना भागकर आपने केयरफुली किताबों को सेलेक्ट किया और फिर उनको कंसिस्टेंटली 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज किया। तो यहां से इस पहले सवाल से हम ये समझे, तो कब आपके मन में ये आया, मतलब वो क्या ख्याल था आपके मन में कि मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है, या आपकी ड्राइविंग फोर्स, या मतलब how did you identify that your calling in life is to become an IAS officer? मतलब क्या चीज थी इसमें? मैं यूजुअली जब स्टूडेंट से बात करता हूं तो कुछ लोग इसमें ग्लैमर देखते हैं, ग्लैमर भी देखते हैं, इस पोजीशन को बड़ा ग्लैमरस पोजीशन भी माना जाता है, बड़े ग्लैमर के पहलू से भी देखा जाता है। आपको इस पोजीशन में यूपीएससी ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर बनने में क्या चीज थी जिसने सबसे ज्यादा आकर्षित किया? यस सर। तो सर बिगनिंग विद, जब मैं छोटा था तो जब भी मैं पापा के साथ बाइक पे ट्रेवल करता था तो यूजुअली एक कहानी टाइप से मैं क्वेश्चन पूछता था कि who is the person who has authority to inspect all these police stations and to ensure food supplies and all those, काफी जो होता है रोमांचक बना के मैं क्वेश्चन उनसे पूछता था। तो वहां से फर्स्ट टाइम मुझे समझ आया कि डीएम पदाधिकारी होते हैं, एसपी होते हैं। उसके बाद सर जब मैं क्लास 6 में सैनिक स्कूल के लिए क्वालिफाई किया, तो द होल पर्पस और द होल इंटेंशन ऑफ सैनिक स्कूल इज टू सर्व कंट्री एंड टू सर्व पीपल, बट बेसिकली इट वाज फॉर द आर्म फोर्सेस। और जब से 2016 में आई कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द आर्म फोर्स, तो माय इंटेंशन वाज क्लियर कि मुझे एक जो है पब्लिक सर्विस में जाना है, कंट्री को सर्व करना है। एंड दिस वाज द अनदर ग्रेट प्लेटफॉर्म दैट आई गॉट थ्रू सिविल सर्विसेज, since I was already unfit for armed forces. So I thought that why not do something better and to do something even greater. So that is where sir I decided to go for the civil services. इसके अलावा सर जहाँ तक आईएएस का बात है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो सर शुरू से ही एक जो है लोकल न्यूज़पेपर में या फिर इवेंट से लोगों से बातचीत में पता चलता था कि जिला के ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी होते हैं और बाद में जाके सेक्रेटरी वगैरह बन के भी पॉलिसी इम्पैक्ट करते हैं। तो सर ये जो आईएएस की जो स्पेशलिटी थी, टू बी अमॉन्ग द पीपल, टू वर्क फॉर द पीपल, लोगों के बीच रह के लोगों की जिंदगी में प्रभाव और पॉजिटिव बदलाव लाने का, ये सर बहुत बड़ा अट्रैक्शन था मेरे लिए। कि जो भी मैंने बीइंग फ्रॉम बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, जो भी मैंने समस्याएं देखी गांव में, तो था कि एक दिन मैं भी बन के उन समस्याओं का समाधान कर सकूं। और सर मेरा प्रिपरेशन के टाइम में बहुत स्ट्रांग मानना हो गया कि अगर एक आईएएस ऑफिसर चाहते हैं तो बहुत पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, बहुत चीज़ों को सुधारा जा सकता है। तो ये चीज़ जो था, इसके अलावा सर हम देखें अगर आईएएस को, तो बहुत सारे तमाम फील्ड पे काम करते हैं, बी इट एजुकेशन, बी इट हेल्थ सेक्टर, बी इट एग्रीकल्चर सेक्टर, बी इट वुमेन एम्पावरमेंट, बाकी जितने भी हैं वो सभी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और सब में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो ये चीज़ सर बहुत स्ट्रांगली दिस बिकेम द पुल फैक्टर फॉर मी टू जॉइन एंड कंट्रीब्यूट इन द नेशन मेकिंग। बहुत बढ़िया। तो एक चीज बताएं, आपने अभी पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि आपने बड़ी केयरफुली मटेरियल को सिलेक्ट किया और फिर उसी मटेरियल को लगातार 2 3 4 बार किया। तो मटेरियल जब कोई भी एस्पिरेंट जब तैयारी करना शुरू कर रहा है, तो किन चीजों का ध्यान में रखा जाए? कैसे हम ये सेलेक्ट कर पाए कि ये जो मैंने सेलेक्ट किया ये पर्याप्त है, या मुझे और रेफरेंसेस बुक चाहिए, या और क्वेश्चन बैंक चाहिए? मतलब क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे आपने अपने मटेरियल को सिलेक्ट किया कि भाई ये मेरा असला है, इस असले से मुझे जो है इस एग्जाम को फोड़ना है? यस सर।
सर सबसे पहले तो एस्पायरेंट्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दे डाउनलोड द यूपीएससी सिलेबस एंड दे डाउनलोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैंने भी सर यूपीएससी सिलेबस डाउनलोड किया और सिलेबस को बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाके एनालाइज करना है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या बातें हैं, क्या पूछी जा रही है। जब सर हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं तो हमें एक ब्रॉड फ्रेमवर्क मिल जाता है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड ऑफ यूपीएससी। और उसके बाद सर क्या होता है कि जब हम एक्सपेक्टेशन समझ जाते हैं कि यूपीएससी क्या डिमांड करती है, तो फिर हम जो है सोर्स के पीछे हम जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे सिलेबस समझ में आ गया कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये सब पोर्शन है, ज्योग्राफी में ये सब पोर्शन है, तो फिर जो भी सोर्स मैं पिक करता था उसके इंडेक्स से आई यूज्ड टू गो थ्रू एंड यूज्ड टू सी दैट वेदर दिस मैचेस विथ माय सिलेबस और नॉट। ये सर एक बहुत ही मतलब थोड़ा टाइम लगा इसमें, जो मैंने सर आपको बताया कि इनिशियल 1 ईयर मेरा एग्जाम समझने में निकल गया और अगला 2 साल मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया। तो ये टाइम वही टाइम था जो मैंने इन्वेस्ट किया। इसके अलावा सर क्या होता है कि आजकल चीज़ें आसान करने के लिए जो है टॉपर्स टॉक, लोग टॉपर्स अपनी बुक लिस्ट डिस्कस करते हैं। तो उससे भी जो है कुछ हद तक समझा जा सकता है कि कौन-कौन से बुक्स पढ़ना है। पर उसमें भी सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो एक्स टॉपर के लिए वर्क किया दैट मे नॉट वर्क फॉर मी। So it is very important that one decide their own material very meticulously and sees that it suits him. For example, sir, if I give my own example, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो ज्योग्राफी में मैं एनसीईआरटी से किया। बहुत लोग जीसी लियोंग से करते हैं, बहुत लोग और एक्स्ट्रा जाके माजिद हुसैन भी पढ़ते हैं। पर मुझे लगा कि मेरा एनसीईआरटी अगर मैं क्लास 11-12 का करता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी होगा और मैंने उतना करके रुक गया मैं कि आई वाज श्योर कि मेरे लिए हो जाएगा मुकुंद एंड मुकुंद दैट सॉरी वर्क फॉर। मुकुंद सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन मैं क्लब करना चाहूंगा जिसका क्वेश्चन यस सर। जवाब शायद आ रहा है। जब हम सोर्स सेलेक्टिवनेस, सेलेक्टिंग द राइट मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 6 से 12 तक की पढ़ो या 10 से 12 तक की पढ़ो, किस में एनसीईआरटी लो, किस में एनसीईआरटी नहीं लो। तो आप, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी क्वेश्चन के साथ इस पर्टिकुलर इशू पे भी अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। यस सर। सर आई शेयर माय ओन एक्सपीरियंस। जहाँ तक कि सर एनसीईआरटी का मेरा, मैं जो एनसीईआरटी किया सर इट वाज ओनली फॉर ज्योग्राफी एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा सर मैं बाकी जो भी बुक्स थी मैंने स्टैंडर्ड बुक से किया। और इसके पीछे सर आई एम क्वाइट आई एम गोइंग अनकन्वेंशनल वे। यूजुअली पीपल से दैट यू नीड टू डू एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 to 12। पर मेरा पर्सनल ये मानना था सर कि एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू पिक अप द स्टैंडर्ड बुक्स व्हिच एवरीबॉडी इज डूइंग, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। और एनसीईआरटी सर इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके लिए जो आई वुड से कि जो काफ़ी डिस्कनेक्टेड हो गए हैं और जिन्हें स्टैंडर्ड बुक में डिफिकल्टी होती है। हालांकि सर आजकल स्टैंडर्ड बुक भी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आ गया है, तो उससे भी किया जा सकता है। तो सर एनसीईआरटी पे मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने सिर्फ आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी करी थी। इसके अलावा सर जहाँ तक न्यू एंड ओल्ड का बात है, तो सर आई प्रेफर्ड ओल्ड वन। आई डिड नॉट गो फॉर द न्यू एनसीईआरटीज। सो ओल्ड वन वर्क फॉर मी एंड इट वाज sufficient for me. So that is my take on this subject, sir, this topic. और कुछ कहना चाहेंगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल पे, जिसमें जिसके बारे में, जिसमें मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, शायद वो फ्लो ऑफ थॉट आपका बीच में ब्रेक हो गया। यस सर। सर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में ये सब बातें के अलावा ये ध्यान रखना, अपने मटेरियल में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जो सर मैं अपने फ्रेंड्स और अपने फेलो स्टूडेंट्स में देखा कि वो मटेरियल में ट्रस्ट नहीं करते हैं। सपोज एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं तो उनके मन में ये बात आ जाती है कि शायद ये सफिशेंट नहीं होगा, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। तो ये जो है एक लाइन ड्रॉ करना, जो लक्ष्मण रेखा बोलते हैं कि हम कहीं यहाँ तक रुक जाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा एस्पेक्ट सर ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिविल सर्विस में ज्वाइन करने के लिए one I'd say quite humbly I'd say that one need not have knowledge like that at the level of professor or scientist. You should know you should fulfill the expectation of the syllabus और आपको उस लेवल पे नहीं पहुंचना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो being civil servant you can invite them for their suggestions। तो आपको जो है बहुत जनरल तरीके से जो डिमांड है उसको फुलफिल करना है और सोर्स लिमिटेड रख के सोर्स को बार बार पढ़ना है। जैसे कि सर मैंने जब एनसीईआरटी किया
तो मैंने एनसीईआरटी को 2 बार किया। सपोज इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ वेरी फेमस बुक एम लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, तो आई डिड एम लक्ष्मीकांत फॉर 3 to 4 times. I did not go for DD Basu or some other books. So it is very important that you follow your own source, you have confidence in your own source, and you do it multiple times so that you will have confidence, and whenever question comes you would be able to deal with it confidently. So that is my suggestion, sir. तो 2-3 बातें यहाँ पर हम आपसे मुकुंद से समझे इस क्वेश्चन के जवाब को मैं समअप करना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये समझा, जैसे आपने कहा कि आपने एग्जाम को समझने में 1 साल लिया, that means success in UPSC is not about running fast, it is about running in the right direction. Right, sir. अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आप जरूर सक्सेसफुल हो सकेंगे। दूसरी चीज मैं समझा, it is not about quantity, it is all and all about quality. Very तीसरी right. चीज जो बताई, it is not about buying 5 to 6 or 10 books of a subject, it is only about doing 1 or 2 or 3 books and doing them repetitive number of times, जैसे कि आपने कहा। तो जब हम repetitive number of times की बात करते हैं मुकुंद, तो 2 चीजों पे आप थोड़ा मेरे को और डीप इनसाइट दीजिए। कुछ ऐसे अनछिपे पहलू मैं जानना चाहूंगा कि नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एक ऐसे सिलेबस की जिसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है एक तरीके से। Right, sir. ना ही कोई बाउंड्री है विड्थ में, ना ही कोई बाउंड्री है डेप्थ में, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। Right, sir. मतलब किसी क्वेश्चन को आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ कोर्स है, शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं Very है। right. तो Very right. इन दोनों इस एक ऐसे एग्जाम में जिसकी विड्थ और डेप्थ डिफाइंड नहीं है कंटेंट की टर्म्स में, उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है नोट मेकिंग, और दूसरी चीज जो नोट मेकिंग से इंपॉर्टेंट होती है वो है रिवीजन। क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेबस को 2 बार 3 बार, हो सकता है 4 बार भी रिवाइज करना पड़े। तो आपने नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, बनाए थे तो कैसे बनाए थे, या आइडियली बच्चे को किस तरीके से बनाने चाहिए, और रिवीजन किस तरीके से, किस फ्रीक्वेंसी में करते थे, और क्या टेक्निक्स थी रिवीजन के लिए? Yes, sir, very true. So as you said, even in UPSC sphere, we say that everything under the sun is syllabus of UPSC. तो कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, कुछ भी। तो सर बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये समझना कि हम जब भी बुक पढ़ते हैं, जो भी बुक, मेरा जो नोट बनाने का स्टाइल अगर मैं शेयर करूँ सर, तो जो बुक के मार्जिन्स होते हैं, जो भी स्पेस होते हैं, मैं उस पे पेंसिल से, पेन से स्क्रिबल करता था, और मैं A4 शीट खरीद के मैं उसमें जो है हर चैप्टर के लास्ट में उसका समरी बना के अटैच कर देता था। इससे क्या होता है कि सर जब हम रिवीजन करते हैं तो हमारे पास नोट जो है बहुत हैंडी रहता है, बुक के साथ साथ ही नोट्स भी हमारा प्रिपेयर हो जाता है, स्टेपल करके उसको आप रख सकते हैं। और जब सर फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग के टाइम ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है जो भी इम्पोर्टेंट पहलू है उसको हाइलाइटर से, पेंसिल से हाईलाइट करें, और सेकेंड रीडिंग में जब आपको फास्ट में करना होगा तो आप उस चीज को जो है जल्दी से अच्छे से करें, बाकी चीज को रफली पढ़ें। इसके अलावा सर नोट्स मैं ज्योग्राफी के लिए और कुछ और सब्जेक्ट्स के लिए मैं नोटबुक में भी नोट्स बनाया। तो उसमें सर बहुत इम्पोर्टेंट है कि नोट्स जो है सकिंट और कॉन्साइज हो, कि आप ऐसा नहीं है कि आप फिर से पूरा बुक ही नोट्स में लिख दिए हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप बस उसको चुने और एक हेडलाइन लिखे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू टॉक अबाउट कि आर्टिकल 1 क्या है, तो वी हैव टू से दैट इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये चीज आपको लिखना है, पूरा आर्टिकल को आप लिखने नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स आप हाईलाइट कर देंगे और आर्टिकल 1 में ये है। तो नोट जो है बहुत प्रिसाइज हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें आ जाए, इसके लिए आप एस्पायरेंट्स को जो भी एग्जाम देंगे उनको कोशिश करना है। इसके अलावा सर बुक में जो है जब भी बुक पढ़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके हाथ में पेंसिल हो। होता क्या है सर कि अगर जब हम पेंसिल लेके बुक पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और इफ़ देयर इज एनीथिंग इम्पोर्टेंट इन दैट बुक वी कैन ऑलवेज अंडरलाइन दैट, हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको साइड में जो स्पेस होती है ऊपर नीचे बगल वाले चैप्टर के अंत में जो स्पेस होती है उसमें उसको लिख सकते हैं, ताकि रिवीजन के टाइम पे ये बहुत ही हैंडी हो जाता है। और बुक को ऐसा नहीं है कि बुक को सजा के रखना है, आप उसमें लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, आपका बुक है, आपको अपने हिसाब से उसको बदल देना है, उसको यूज करना है। इसके अलावा सर जो है थोड़ा नोट्स को अच्छा बनाने के लिए आई वुड सजेस्ट दैट आप मल्टीपल कलर यूज नहीं करें, बट एटलीस्ट 2 कलर यूज करें, ब्लू पेन, ब्लैक पेन यूज करें। उससे क्या होता है कि आप हेडलाइन अलग कलर में दे दिए और नीचे समरी लिख दिए, तो जब आप पढ़ेंगे तो वो बोरियत नहीं आई होगी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अगर उसको कर देते हैं
तो बोरियत नहीं आएगी और काफी अच्छे से कर पाएंगे। और नोट्स में मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि नोट्स को जो है ना ज्यादा वास्ट नहीं करें, नोट्स को कंसाइज रखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे मेंस का जो एग्जाम होता है वो नेक्स्ट डे एग्जाम होता है, एक दिन में 2 पेपर होता है, 9 to 12 एंड 2 to 5। तो आपको 2 घंटे में बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी है, और अगर आपका नोट्स छोटा होगा तभी आप रिवाइज कर पाएंगे। प्री से पहले अगर आप 4 दिन में कुछ रिवाइज करना चाहते हैं तो अगर आपका नोट्स छोटा होगा तभी रिवाइज करेंगे। इसके अलावा सर एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा, नोट्स बनाने वक्त ये भी ध्यान रखें कि सिर्फ आप जो है अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज पिक नहीं कर रहे हैं। नोट्स बनाने में मैं पर्सनली सर थोड़ा इवेट करता था नोट्स बनाना, इसलिए क्योंकि काफी टाइम क्या होता है सर कि एस्पायरेंट्स पिक इम्पोर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू देयर ऑन थिंकिंग। हो सकता है आप जो इम्पोर्टेंट चीज पिक कर रहे हैं, हो सकता है यूपीएससी में गो बियॉन्ड दैट, आपने जो चीज छोड़ दिया नोट्स में लिखना, मे बी यूपीएससी उससे कुछ क्वेश्चन पूछ दे। तो इसीलिए मेरा रहता था सर कि बुक में ही आप साइड में नोट्स बनाओ, बुक में ही पेज अटैच करो, और बुक को तो पढ़ो ही पढ़ो, 2 बार 3 बार आप पढ़ो, ताकि आपका सब कुछ प्रिपेयर्ड रहेगा। जब आप एग्जाम देंगे तो आप सिर्फ अपने नोट्स नहीं, जो स्टैंडर्ड बुक है उसको आपने किया है। हालांकि ये भी सही है सर कि 100% नहीं हो पाता है, एग्जाम निकलने के बाद भी अभी भी लग रहा है कि कुछ छूटा रह गया। छूटा रहेगा। तो जी सर, तो मतलब कुछ कसर तो अभी रह गई है। हाँ कुछ कसर अभी भी लगता है कि मिडाइवल शायद अभी भी बचा हुआ है, टॉप रैंक भी आ गया, पर मिडाइवल अभी भी बहुत कुछ छूटा हुआ है। तो मैक्सिमम पहुंचने का जो है वो तरीका रखें, और सर जो चीज मैंने बताया है इन सब चीजों को अगर ध्यान रखते हैं तो शायद काफी हेल्पफुल रहे। तो इसमें अगर इसको दूसरे नजरिए से अगर हम देखें, जैसा आपने कहा कि कुछ चीजें अभी रह गई हैं, तो यस सर। यूपीएससी के एग्जाम के अंदर मतलब 100% सिलेबस कवर करना जरूरी है, या एक तरीके से हम कहते हैं कुछ चीजों को हम छोड़ भी सकते हैं? मतलब एक कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हाई स्कोरिंग एग्जाम्स हैं जिसमें कट ऑफ मान लीजिए 80% 90% जा रही है, वहां पे आपको 100% सिलेबस कवरेज करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाह रहा हूँ कि आपने पूरा सिलेबस कवर किया था, या कुछ कुछ चीजें छोड़ कि ये चीजें छोड़ देते हैं? सर कुछ कुछ चीजें टू बी ऑनेस्ट सर आई स्किप्ड। मिडाइवल जो है, मैं मिडाइवल इसलिए आ गया क्योंकि मिडाइवल मैंने अच्छे से नहीं किया। लकली हुआ सर कुछ ऐसा कि प्री में 3-4 क्वेश्चन, बहुत लंबे टाइम के बाद इस साल मिडाइवल से 2-4 क्वेश्चन आ गए, तो उस समय मुझे परेशानी हुई। और सर जब तक रिजल्ट नहीं आया था कि इस बार फिर से अपेयर करना है, तो इस बार सर मैं मिडाइवल भी करके जा रहा था, बिकॉज यूपीएससी हैज ऑलरेडी हिंटेड that now we are going to touch the new sections as well। तो मेरा था कि मिडाइवल, इसके अलावा सर मैंने कहीं भी कुछ नहीं छोड़ा। बाकी चीजें जो भी सारी थी, जो डिमांड थी उसको मैंने कंप्लीट किया। पर जो एक्सटेंट जो बोलते हैं सर, उसमें जरूर मैं बोलूंगा कि बहुत ही मुश्किल है, सिलेबस बहुत वास्ट है, एज यू सेड एंड एज वेल एज आई सेड सर, एवरीथिंग अंडर द सन फॉल्स अंडर द यूपीएससी सिलेबस। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्मार्ट स्टडी हो। और स्मार्ट स्टडी कहने का मतलब मेरा सर ये कि अगर हम पेपर को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि पॉलिटी से हर साल एटलीस्ट 15 क्वेश्चन होंगे, पर अगर हम आर्ट एंड कल्चर का वेटेज देखते हैं तो हम देखते हैं कि 4 से 5 6 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मुझे चॉइस दिया जाए कि दोनों में से कौन सा चूज करना है, तो एनी रीजनेबल पर्सन विल चूज पॉलिटी, बिकॉज there would be high number of question from polity, high number of question from environment section, and उतना क्वेश्चन हो सकता है कि आर्ट एंड कल्चर से नहीं पूछे। लेकिन सर यहीं पे मैं एक कॉशन दूंगा कि पहले से ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं रखना है। ये सब लास्ट स्टेज में, अगर आपके पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, आपको इनपुट आउटपुट देखना, उस टाइम ये करें। पहले से आपको पूरा सिलेबस, पूरा आई वुड से मिडाइवल एज वेल आपको करके जाना है। यू नेवर नो, वन नेवर नो कब यूपीएससी जो है, जैसे कि सर ज्योग्राफी बहुत सालों से यूपीएससी पेरेंट्स के बीच, जो मैं अगर आपको कॉमन बात बताऊं, चल रहा है कि ज्योग्राफी नेग्लेक्टेड सेक्शन है। और लास्ट ईयर भी बहुत था कि इस साल ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आएंगे, नहीं आया, मैथ बेस्ड क्वेश्चन आया। तो हो सकता है इस पीढ़ी में ही ज्योग्राफी से पूछते। तो ट्रेंड को भी बहुत इंटेलिजेंट वे में समझना इम्पोर्टेंट है। ट्रेंड को समझ के आप कुछ चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं, पर यू कैन नेवर गो ब्लैंक। Medieval, as I said, sir, I was not 100%, I was not 80%, but it was not like that कि कोई मुझसे मुगल एम्पायर का सीरियल पूछ दे कैसे था, तो आई go blank. You should have rough idea,
But when it's about input output cost analysis, always go for doing or revising those sections which have more weightage. For example, polity, environment. These are sections from which minimum 15 question comes every year. Current affairs. तो ये है सर, जैसे कि मेंस का अगर सर मैं एग्जांपल दूं तो एक बार को वर्ल्ड हिस्ट्री, और अगर वर्ल्ड हिस्ट्री और हिस्ट्री को कंपैरिजन करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा वेटेज है। तो रिवीजन के टाइम आप मॉडर्न हिस्ट्री पे जा सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को एक बार को 2 बार रिवीजन कर लिए, तीसरा बार नहीं भी किए, एक बार भी किए तो चल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत डीप इनसाइट्स। एक चीज और मुझे बताएंगे कि ये जो जब आपने अपने ऑप्शनल सेलेक्ट किए, व्हाट आर द राइट क्राइटेरिया टू चूज योर ऑप्शनल्स? बिकॉज इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारे फैक्टर्स से ड्रिवन होते हैं जो कि उनके आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं कि ये आसान है, इसमें सिलेबस कम है, यू नो मेनी फैक्टर्स। आपने अपने ऑप्शनल जब सेलेक्ट Yes, किया, as I said, I graduated from English literature. That is one of the optional in the UPSC. But despite that, I chose political science and international relation as my option. और सर इससे मैं यही स्टूडेंट्स के बीच मैसेज देना चाहता हूँ, go for your interest. आपको जो है, आपको जिस विषय में रुचि है उसको आप फॉलो करें. It should never be that कि X topper has taken this optional or somebody has taken this optional, your senior has taken this optional. Not at all. मेरा जहाँ तक सर पर्सनल डिसीजन था, तो मुझे जो है इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इंटरेस्ट था। सिंस द टाइम ऑफ क्लास 11 एंड 12 इन आवर स्कूल वी यूज्ड टू गेट द हिंदू न्यूज़पेपर। तो मैं वर्ल्ड पेज में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, और वही इंटरेस्ट मुझे उस समय सर पता भी नहीं था कि मुझे आगे सिविल सर्विस करना है या सिलेबस का पार्ट है, कुछ भी जनरल इंटरेस्ट था। कॉलेज के टाइम पे भी फर्स्ट ईयर तक नो आइडिया अबाउट सिविल सर्विसेज, आई नेवर थॉट, बट आई ऑलवेज हैड सम ट्रैक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन अफेयर्स। तो ये चीजें जो सर जब मैंने ऑप्शनल का डिसाइड किया, तो ये चीजें जो डायनामिज्म पार्ट था दैट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। उसके अलावा सर थिंकर्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। फॉर एग्जांपल प्लेटो ने क्या कहा, मैकियावेली ने क्या कहा, मार्क्स का क्या थॉट है, इस सब चीजों में मुझे बहुत इंटरेस्ट था और मुझे पढ़ के अच्छा लगा। और अगर मैं सर अगर पर्सनली बताऊं तो इंग्लिश ऑनर्स से मेरा ऑलरेडी 60% सिलेबस कंप्लीट था कॉलेज के टाइम पे ही। Despite that, I did not choose English literature. I had interest in English literature, but I had more interest and more enthusiasm for political science. So everywhere, sir, I say only one thing: sole criteria has to be interest. Because sir, syllabus masters level का है, syllabus बहुत detailed है, और अगर आपको interest नहीं है subject में, तो आप बीच में give up कर देंगे। आप कितना भी प्रयास करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सर कुछ मिथ्स जो I'd like to dispel here, कि ये जो है ट्रेंड में सब्जेक्ट है, इससे मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं, ये सब, हाँ, ये सब चीजों को सर इग्नोर करना है। अगर आप लिस्ट निकाल के अगर कोई बैठ के एनालाइज करे, तो ही विल गेट दैट कि हर ऑप्शनल से टॉपर सेलेक्ट हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा टॉपर आ रहे हैं, सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, ऐसा नहीं है। आपको क्या पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको कौन सा मटेरियल जो है, मटेरियल एक हो सकता है सर मटेरियल कांस्टेंट, पर अगर अगर आप कोई सर्च करें तो हर उस चीज के लिए, हर ऑप्शनल के लिए मटेरियल भी मिल जाएगा। इंटरेस्ट को गाइडिंग फैक्टर रखें। इसके अलावा सर कुछ मैं बातें करूंगा जिनको ध्यान में रख सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं दैट हैज कॉमन सिलेबस विथ जनरल स्टडीज पेपर, फॉर एग्जांपल माय सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, so that was part of GS2, so that helped me. So if somebody is having that subject जहाँ पे कि कॉमन है, तो वो हेल्प कर सकता है। पर इंटरेस्ट रहने के बाद ये क्राइटेरिया मैं बोलूंगा सर। थर्ड क्राइटेरिया हो सकता है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट। अगर जैसा कि मैंने बताया कि सर 60% ऑलमोस्ट कंप्लीट था, तो ग्रेजुएशन का सिलेबस जो है वो सिलेबस रहता ही है यूपीएससी का ऑप्शनल का, और इसके अलावा कुछ मास्टर्स के सिलेबस ऐड हो जाते हैं। तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अगर आपने इंटरेस्ट से लिया है और आपका इंटरेस्ट कंटिन्यू है, तो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। आप ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ले, आप बड़े आराम से कुछ चीजें आपके ऐड ऑन हो जाएंगे, पर आप मोस्टली चीजें पढ़े रहेंगे, तो आपको न्यू एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। तो सर ये सब कुछ चीजों का ध्यान रखना। वेरी 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 डीप इनसाइट। तो जब आप पीजीडीएवी कॉलेज में पढ़ रहे थे और आपने कहा कि आपने फर्स्ट सेकंड ईयर से तैयारी शुरू कर दी थी, तो उस समय आपका क्या रूटीन रहता था? और जब आपने 2018 पीजीडीएवी क्लियर कर लिया, मतलब स्कूल जब कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो गए, 2018 से लेकर 2019 में क्या रूटीन रहता था? मतलब कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे? मैं जस्ट एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग
सर 2016 से 17 जो है, जैसा कि मैंने बताया सर कि काफ़ी रफ फेज़ था, प्रिपरेशन समझने में टाइम लगा मुझे। तो उसमें सर मैं टाइम भी कॉलेज के टाइम क्या होता है कि कॉलेज अटेंड करना होता है सर, लेक्चर्स लेने होते हैं, वी कैन नॉट मिस ऑन दैट, और इट इज़ नॉट वाइज टू मिस ऑन दैट बिकॉज़ यू आर डूइंग ऑनर्स, सो यू शुड हैव कमांड ऑन दैट सब्जेक्ट। तो उसके कॉलेज के टाइम में जो सर ब्लैंक पीरियड्स होते थे, उसमें मैं क्या करता था, लाइब्रेरी जाके, कॉलेज के लाइब्रेरी में जाके अपना सिविल सर्विस का अपना प्रिपरेशन करता था। इसके अलावा घर आके जो सर कॉलेज का टाइम, कॉलेज का जो भी नीड होता था उसको कंप्लीट करके, प्रोजेक्ट बना करके, आई यूज्ड टू फोकस ऑन सिविल सर्विसेज कि इसका प्रिपरेशन करना है। तो उस टाइम से 4 से 5 घंटा मैं सिविल सर्विस को दे पाता था। और इनिशियल 1 ईयर से 2016 टू 2017 मैंने करंट अफेयर्स नहीं किया था, सिर्फ स्टैटिक्स जो सिलेबस था वही किया था, तो टाइम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हुई। जब मैं सर थर्ड ईयर में आया, तो समवेयर आई वुड से दैट कहीं न कहीं मैं कॉलेज से टाइम थोड़ा जो है निकालना शुरू कर दिया। सो इफ देयर इज़ जहाँ पे कि मेरा अटेंडेंस ऑप्टिमम लेवल पे है, और इफ आई नो दैट आई वुड बी एबल टू डू दिस, चूँकि ऑन माय पार्ट इट वाज़ लिटरेचर, सो लिटरेचर सेल्फ स्टडी करके भी कोई कोई पर्सन कैन राइट द एग्जामिनेशन। तो वहाँ पे सर कुछ टाइम मैंने निकाले अपने सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए। तो वो लेक्चर कॉलेज जाके भी आई यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी, और कोई पार्टी, जैसे कि कोई पार्टी गेट टुगेदर है, उसको मिस करके, कोई मूवीज शो है उसको मिस करके, यहाँ से टाइम निकाल के मैंने कॉलेज के टाइम पे उसको 4 घंटा को मैंने कोशिश किया कि 6 घंटा पे ले पाऊँ। कॉलेज में कई टाइम से छुट्टी होता है, वैकेशन होता है लंबे ड्यूरेशन का, विंटर टाइम में, समर टाइम में, उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना भी मैंने कोशिश किया। घर पे आते ही थे तो घर पे भी ज़्यादा घूमना नहीं, प्रिपरेशन में लगे रहें, कंटिन्यूटी बनाते रहें। उसके अलावा सर जब 2018 में मैं पास आउट हो गया, दैट वाज़ माय गोल्डन फेज ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज़ दैट वाज़ द टाइम व्हेन आई डिड नॉट फुलफिल द एज क्राइटेरिया, आई वाज़ नॉट 21, एंड मेरे को पूरा कंप्लीट 1 ईयर आई गॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो पूरा 1 साल उस समय सर आई प्रिपेयर्ड वेरी रिगरसली। उस समय मैंने अपने पढ़ाई को, जो 6 घंटा था, उसको 8 से 10 घंटा ले जाने का कोशिश किया। और यहाँ पे सर मेरा एक स्ट्रैटेजी जो मैं शेयर करता हूँ, बताना चाहूँगा। यहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी था सर, आई यूज्ड टू फॉलो 3+2+3 फार्मूला, जो मैंने अपने खुद के लिए बनाया। तो 3+2+3 फार्मूला कुछ ऐसा है कि फर्स्ट सीटिंग में जब मैं बैठता था, तो मैं 3 घंटे के लिए पढ़ूँगा, उसके अलावा फिर मैं कुछ ब्रेक लूँगा, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स खाऊँगा, बाद दोस्तों से बात करूँगा, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोज़ देख लिए यूट्यूब पे, कुछ भी किसी तरह से थोड़ा डिटैच हो गए। फिर मैं 2 घंटा के लिए पढ़ाई करता था, फिर थोड़ा-सा ब्रेक लिए, फिर मैं 3 घंटा के लिए पढ़ाई करता था। तो 3+2+3 8 आवर्स हो जाता था। इसके अलावा सर मैं न्यूज़पेपर जो होता है, इसके अलावा मैं न्यूज़पेपर करता था। तो पहला 3 घंटा में एक जीएस सब्जेक्ट पढ़ लिए, नेक्स्ट 2 आवर्स में करंट अफेयर्स या ऑप्शनल कर लिए, नेक्स्ट 3 आवर्स में दूसरा जीएस पेपर पढ़ लिए, और इसके अलावा न्यूज़पेपर। तो कुछ 9 साढ़े 9 घंटा जो है कंटिन्यूअस 2018 अंटिल प्रीलिम्स, दैट वाज़ माय स्ट्रैटेजी, दैट वाज़ माय प्लान। और सर मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ जो मैं बहुत ऑनेस्टली फॉलो किया, किसी भी वजह से इफ आई यूज्ड टू मिस रीडिंग न्यूज़पेपर, तो रात में मैं अगर 11 बजे भी घर आता था, तो भले ही मेरे सारे फ्रेंड्स सो जाएँ या पढ़े भी रहें, मुझे बिना न्यूज़पेपर का रात को नींद ही नहीं आता था। तो द हिंदू पढ़े बिना मैं कभी नहीं सोता था, एंड दैट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। क्योंकि सर इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग नाउअडेज, current affairs has great weightage, and newspapers helps us a lot. So I'd say that you have to do newspaper very religiously, very meticulously, and that helped me. So this was the broad So plan, sir. one thing, this is for all the students who are watching this interview. One thing which is coming out extremely clear again and again in all the answers, that one of the keys to success of Mukund is consistency. ऐसा नहीं है जैसा हम कई बार सोचते हैं, जैसा मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक टॉपर 12-14 घंटे पढ़ रहा है। ये आपके सामने है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 54 लेके आना, और 6 से 8, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं। उन्होंने खुद आपसे हमारे सामने कहा है कि कॉलेज के दिनों में 6 घंटे, और कॉलेज के दिनों के बाद जब पूरा 1 साल इनको तैयारी के लिए मिल गया था, उसमें भी 8 से 10 घंटे। So what I'm trying to extract from what he just said
that one is consistency, और दूसरी चीज जो है कि जिस समय हम पढ़ रहे हैं उस वक्त कितनी शिद्दत या कितनी जान या कितनी कितने इंटेंसिटी के साथ, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी ऑफ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वालिटी ऑफ स्टडी शुड बी हाई। तो बहुत सही। अब मुकुंद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और अब हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं। तो Yes. आपने जैसे जो जनरल स्टडीज के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री होता है, इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटी होता है, एथिक्स होता है, उनकी किस तरीके से तैयारी की अलग अलग सब्जेक्ट की, बोथ प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम बताएं तो जनरल स्टडीज के अगर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी किस तरह क्या स्ट्रेटेजी थी उनके लिए? Yes, sir. Sir, at the very outset, I'd like to clarify that preparation has to be integrated. It is really very, very important for parents to understand that आपको prelims की और mains की तैयारी साथ में करनी है, तैयारी अलग नहीं होगा। जो सर मैं और एक अपना अगर जैसे कि स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो किया दैट वर्कड फॉर मी, तो सबसे पहले सर जो प्रीलिम्स और मेंस का जो कॉमन पोर्शन था, कॉमन सब्जेक्ट थे, उसको मैंने कंप्लीट किया। फॉर एग्जांपल सर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, जो ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं सर, उसको करना है। और सबसे पहले जब कॉमन सब्जेक्ट को हम करते हैं तो क्या होता है कि सर बाय द एंड ऑफ द ईयर प्रीलिम्स का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा और मेंस का भी आई वुड से दैट ऑलमोस्ट 70% प्रिपरेशन आपका हो गया रहेगा। कुछ सेक्शंस बाकी रहेंगे जैसे कि GS4 कंप्लीटली बाकी रहेगा, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, क्योंकि कंप्लीटली मेंस का पार्ट है। और उसके अलावा सर वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीटली मेंस का पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस का पार्ट है। कुछ ही पॉकेट्स आपके लिए बाकी रहेंगे और आपका बहुत बड़ा बर्डन खत्म हो जाएगा। एक साल होते होते अगला जो मैं 2 साल जो बोलता हूँ सिर्फ कि 2 साल दे के अच्छे प्रिपरेशन हो सकते हैं, तो 1 साल होते होते प्री का सिलेबस खत्म रहेगा, मेंस का भी 70% आपका खत्म रहेगा और अगले 1 साल में आप आराम से मॉक टेस्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप घर में ला के प्रिंट आउट निकाल के फ्रीली अवेलेबल है, आराम से कर सकते हैं। अब सर मैं आपको GS1 GS2 का अलग अलग से स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो GS1 में सर मॉडर्न हिस्ट्री जो था वो जैसे कि मैंने बताया सर प्री के साथ ही मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके लिए अगर सर आगे अगर हम लोग बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे तो आई शेयर मोर बुक जो मैंने फॉलो किया और दैट इज नॉन टू एवरीवन नाउअडेज, मोस्ट पीपल नोज, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। तो GS1 का जो है वर्ल्ड हिस्ट्री मेरे लिए 1 साल तक होते होते सर ये कॉमन पोर्शन मेरे लिए खत्म हो गया था। 1 साल होने के बाद जो है वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने जो बाकी जो था GS1 में वर्ल्ड हिस्ट्री बाकी था, सोसाइटी कुछ हद तक बाकी था, वो सब मैंने किया। इंटरनेशनल रिलेशन में गवर्नेंस बाकी था, तो वो मैंने धीरे धीरे एक एक करके मैंने किया। GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी बाकी था, वो इस टाइम मैं कर रहा था जब मैं ऑलरेडी प्री का मॉक ऑलरेडी देना सर शुरू कर दिया था, चूंकि 1 साल पहले मैंने बताया। और ये खत्म करने के बाद GS4 रफली मैंने देखा सर, और उसके बाद जब प्री का रिजल्ट आया उसके बाद मैंने केस स्टडीज की बहुत सारी प्रैक्टिस की, चूंकि 125 मार्क्स का केस स्टडीज होता है, तो उसका मैंने प्रिपरेशन किया। और सर जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा तो स्ट्रेटेजी मेरा कुछ ऐसा था, जो 3-3 घंटे का 2 स्लॉट होता था, तो उसमें मैं 2 डिफरेंट सब्जेक्ट रखता था। सो सपोज आई एम रीडिंग पॉलिटी, तो इसके साथ जो है मैं बिल्कुल कंप्लीटली अनरिलेटेड सब्जेक्ट रखता था, जैसे कि मैं पॉलिटी के साथ एनवायरनमेंट पढ़ रहा हूँ। होता ये है सर कि आप 6 घंटा एक बुक पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप 3 घंटा एक बुक पढ़ रहे हैं और आप थोड़ा ब्रेक लेके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का स्ट्रेटेजी मेरा रहता था सर, एंड आई यूज्ड टू हैव ब्रॉड प्लान इन माय माइंड कि 2 महीने में मेरे को लक्ष्मीकांत मुझे खत्म करना है, और वो प्लान बहुत रियल होना चाहिए। आप जो है अपने आप को प्रेशर में नहीं डालिए। लक्ष्मीकांत इफ somebody is doing in 15 days, that would put him in pressure, huge pressure, एंड ही में क्रैश, काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आप 2 महीना दे, आप बड़े तसल्ली से बड़े आराम से प्रिपरेशन करें, स्लोली करें। इससे क्या होगा कि आप जब भी कंप्लीट करेंगे तो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कुछ नहीं आता। यू वुड बी समवन हु वुड हैव कमांड ओवर दैट सब्जेक्ट। सो आई वुड से दैट इन्वेस्ट योर टाइम, डू इट स्लोली बट very with a lot of focus and concentration, so that would be helpful. तो इसमें जो अपना प्रीलिम्स के अंदर जो पेपर 2 होता है, क्योंकि Yes, जो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो it seems that they have some kind of an advantage as far as the paper 2 is concerned in prelims.
So how did you give some time to paper 2, or you were clear that you would get the minimum qualifying marks required? Yes, sir. At the first, sir, I'd like to deal with this that engineering background have advantage. So, sir, it is very important to understand that paper 2 is qualifying paper. So one has to get only 33% marks. That is out of 200. One has to get around 67 marks. So I would say I'll put it at 70 marks. तो क्वालिफाइंग है और सर मुझे आई एम नॉट फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आई हैड ह्यूमैनिटीज सो मुझे जहाँ तक समझ में आया कि सर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है एक ट्रिक जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा कि आप जब प्री से पहले आई ऑलवेज से दैट यू हैव टू गिव 5 to 6 months for prelims exclusively 5 to 6 months because if you don't qualify prelims क्या होगा कि आपका जो है अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा एंड यू वुड नॉट बी एबल टू शो योर नॉलेज इन द मेंस एग्जामिनेशन तो जब 5 से 6 महीना बाकी है तो मैं कहूँगा जो मैंने किया सर व्हाट आई डिड दैट आई डाउनलोडेड लास्ट 5 years CSAT Civil Services Aptitude Test question paper and I solved that and on solving I found that my scores are fluctuating between 100 to 120 125 so I would suggest that you आप पहले स्टार्ट नहीं करें आप पहले पेपर सॉल्व करें अगर आप 100 प्लस पार कर रहे हैं एंड दैट यू हैव टू डू बाय पुटिंग होल यू नो अलार्म क्लॉक लगा के 2 घंटे में जैसे यूपीएससी में होता है अगर आप 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आई से दैट यू आर सेफ यू नीड नॉट वरी आप जो है आराम से उस पेपर में भी कर लेंगे वही मेरे साथ भी वो सर आई डिड वेरी फाइनली मुझे कहीं कठिनाई नहीं हुई इसके अलावा उसमें 3 चीजें हैं सर सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में एक तो है रीजनिंग है एक इंग्लिश है और एक मैथमेटिक्स है तो इन 3 चीजों में हो सकता है सर कि थोड़ा मेरा जो है थोड़ा मैथ्स कमजोर था मैथ्स आई वाज नॉट वेरी good at mathematics so I banked upon rest 2 that I would do English comprehension and reasoning so किसी का इंग्लिश वीक होता है तो वो रीजनिंग और मैथ में तो आप इस तरह के कुछ स्ट्रेटेजी बना के दैट यू हैव टू डू प्लान ऑन ग्राउंड दिस इज समथिंग यू हैव टू डू पर्सनली ये आपको पर्सनली समझना पड़ेगा कि व्हाट इज माय स्ट्रेंथ व्हाट इज माय वीकनेस जो हम बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस दैट वन हैज टू डू पर्सनली और अगर उस चीज को समझ जाते हैं सर तो बड़े आराम से 2 सेक्शन पे भी बैंक करके one can easily qualify. So, specifically asking you a question again, I'm trying to get an answer. So, did you prepare specifically for this particular paper 2 in the prelims, or there was no preparation required at your end? You were comfortable? No, sir. I as I said, sir, I did 4 or 5 previous year paper. I was scoring 100 plus. So I assumed that I need to devote for the general studies and I did not prepare. Another very interesting thing, Mukund, which is coming out is that since you said, and I also understand and believe that since the syllabus is so vast, so you have to start preparing for, prelims and mains एक साथ yes, integrated. But yes, कहीं ना कहीं वो पड़ाव आता होगा जब आप कहते होंगे कि अब प्रीलिम्स में मेरे से 2 महीने रह गए या 1 महीना रह गया या 3 महीने रह गए अब मैं फोकस ऐसे टाइप से हटाकर प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर देता हूँ क्योंकि आपने जैसा कहा और प्रीलिम्स इज आल्सो एन इट इज एन एग्जाम ऑफ सरप्राइजेस इट थ्रोस लॉट ऑफ सरप्राइजेस टू यू तो मतलब किस तरीके से आप एक साथ लेके चले और किस स्टेज पे आके आप उसमें प्रीलिम्स पे फोकस कर देते थे और प्रीलिम्स होने के बाद क्या मेंस के रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए या फिर आप 1-2 दिन के गैप के बाद तैयारी कैसे प्लान किया? यस सर सबसे पहले तो जैसा कि आई शेयर माय ओन एक्सपीरियंस मेरे लिए जो है प्रीलिम्स इंटरव्यू से भी ज़्यादा टफ था मुझे प्रीलिम्स से जो है सबसे ज़्यादा डर लगता था और मैं इस बार भी आई यूज्ड टू प्रे टू गॉड दैट गॉड लेट मी फॉल इन द लिस्ट कि नेक्स्ट टाइम मैं जब प्री के लिए जाऊँ तो मुझे इतना डर ना हो जितना पहले हो और इसके लिए सर आई ऑलवेज रिकमेंड कि वन हैज टू गिव at least 4 to 5 months. I recommend 6 months. I gave 6 months for prelims. आप 5 महीने दीजिए और उसको prelims को prepare कीजिए मैं जो सर 2 years जो मैंने फॉलो किया 2 years स्ट्रेटेजी उसमें अगर सर आप अगर मैं बताऊं तो 1 साल में प्री और मेंस का कॉमन खत्म हो जाएगा अगले 3 महीना में जो सर मेंस का जो कुछ पोर्शंस मैंने बताया बाकी है वो कर किया जा सकता है और नेक्स्ट 4 to 5 months में आप ऑप्शनल कर सकते हैं इसके अलावा भी सर 4 से 5 महीना लास्ट में बच जाता है इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा बट इजीली 4 months वन कैन गेट इफ वन फॉलोज द स्ट्रेटेजी दैट आई फॉलोड
उस टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करें। प्री में एवरीबॉडी नोज दैट इट इज इंफॉर्मेशन, इट इज फैक्ट। तो आप फैक्ट पे ध्यान दें, किस ईयर में क्या हुआ उस चीज पे ध्यान दें। एनालिसिस को आपको स्किप करना है। जो क्रूड फैक्ट्स होता है, आप जो है करंट अफेयर्स में भी जो फैक्ट्स होती है, कोई एक्ट आया उसमें क्या आया नहीं आया, उस फैक्ट्स को ध्यान रखते हुए उसको प्रिपरेशन करें। तो वहाँ पे बिल्कुल से प्रिपरेशन अलग हो जाएगी। वहाँ पे मेंस इंटीग्रेटेड नहीं करना है, मेंस का बिल्कुल अलग हो जाता है। प्री होने के बाद मेंस का फिर अलग हो जाता है। तो ये फैक्ट ओरिएंटेड और प्री का जो डिमांड है क्वेश्चन देखते हुए उसको फुलफिल करें। इंडेक्स वगैरह पे ध्यान दें, नेशनल पार्क, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो एक अगर मैं एग्जांपल दूं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। इसके अलावा सर अगर मैं बताऊं कि जैसा कि आपने पूछा कि मेंस प्री के बाद वेट करना है या नहीं, तो मेरे केस में क्या हो गया कि सर आई वाज क्वाइट कंफ्यूज्ड, आई वाज नॉट वेरी श्योर दैट आई विल क्वालिफाई, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज राइटिंग बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, 64th मेंस एग्जामिनेशन। तो मेरा थोड़ा टाइम खराब हुआ, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू कैंडिडेट्स कि आप जो है 5 दिन का ब्रेक ले। इफ़ यू वांट टेक ब्रेक ऑफ 7 days, आप रिलैक्स करें। प्री में आपने काफ़ी हेक्टिक हो गया है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑन चॉइस। 7 दिन से ज़्यादा टाइम खराब करना हो जाएगा। ब्रेक लेने के बाद आई वुड से यू बिगिन प्रिपरेशन फॉर द मेंस। यू शुड नॉट वेट फॉर द प्रीलिम्स रिजल्ट। Already UPSC is cutting short time. Already this year, during my time, there was 110 days. This year, 94 days. So UPSC is already cutting time. And if you wait for a result declaration, then you would be caught unprepared. You would be caught, you'd be shot out of the blue. और आपको जो है एक धक्का टाइप से लगेगा, आपको रिग्रेट होगा कि आपने टाइम खराब कर दिया है। I'll strongly recommend कि you begin preparation for the mains examination irrespective of the result or irrespective of the speculation and cutoff. वंडरफुल। एक और चीज आपने अभी अपने डिस्कशन में पीछे कहा था मुकुंद, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात को 11 साढ़े 11 बज जाएं, पर न्यूज़पेपर पढ़े बिना नींद नहीं आती थी। मतलब Yes, sir. मैं उसको उसी तरीके से कहूंगा, बिकॉज मेरा एक मकसद जो बाकी सब लोग सुन रहे हैं उनको इंस्पायर करना भी है। तो Yes, sir. ये जो करंट अफेयर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है। और एक और टॉपर से बात हुई तो उसने कहा करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स ना रह के कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हो गया। उसकी डेफिनेशन इतनी वाइड हो गई है कि करंट अफेयर्स में क्या है। तो इसको किस तरीके से, सिर्फ न्यूज़पेपर पे ही डिपेंडेंट थे, और इसको किस तरीके से आपने तैयारी की, किस तरीके से एनालाइज करते थे? क्योंकि न्यूज़पेपर वाला पहलू तो मैं आपका समझ गया, क्या उसके अलावा Yes. भी और? सर करंट अफेयर्स के लिए जो है न्यूज़पेपर, सिर्फ न्यूज़पेपर आई नॉट रिकमेंड कि आप डिपेंडेंट हो। इसके अलावा आई वुड से दैट बहुत सारे जो है मैगजीन्स आते हैं सर, दैट इज फ्रीली अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी इंस्टीट्यूट का, या आपको जो भी आपको मैगजीन सूट करता है, यू पिक अप दैट मैगजीन, आप उसको फॉलो करें। और सर इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सर, सपोज आई एम डूइंग न्यूज़पेपर फॉर अगस्त, सो जब अगस्त कंप्लीट होगा तो जो भी अगस्त में इवेंट्स हुए हैं, आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट। और जब अगस्त का करंट अफेयर्स मैगजीन आएगा तो उसमें जो है कंपाइल्ड बड़े तरीके से जो है सारी चीज़ें डिस्कशन होगी। यूपीएससी रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं बड़े डिटेल्ड वे में बहुत सारे मैगजीन्स में मिल जाएंगे। तो होगा कुछ ऐसा सर कि आपने जो पढ़ाई किया है अगस्त में, दैट वुड बी रिवाइज्ड थ्रू द मैगजीन, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज सर कि वन कैन नॉट बी solely dependent on the current affairs, because current affairs is at the end of the day it is compilation of all the events that has happened. न्यूज़पेपर जब हम करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ G20 समिट होने वाली है, तो न्यूज़पेपर G20 होने से पहले भी उस पर आर्टिकल आएगा, G20 जब होगा उस दिन भी आर्टिकल आएगा, और उसके अगले दिन भी आएगा। तो 5 से 6 दिन एक ही इशू को रिपीटेटिव डिस्कस होता है। तो जब आप 4 से 5 दिन रोज पढ़ते हैं, तो आपको जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ न्यू पढ़ रहा हूँ। आप बड़े आराम से रिवाइज कर पाएंगे, और आपको ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द चीज़ें याद रहेगी कि G20 कब फाउंड हुआ, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, चेयर कौन था, एजेंडा कौन था, जो भी XYZ थिंग you would already have in your mind, or that thing you would get revision from the current affairs magazine. So I think there has to be maintained interdependence of newspaper and current affairs magazine, and there has to be maintained fine balance between the two. और न्यूज़पेपर का अगर सर थोड़ा और मैं I'd like to discuss in more detail, it is very very important कि न्यूज़पेपर में जो है
जो यूपीएससी रिलेवेंट चीजें हैं उसको पढ़े. डू नॉट रीड समथिंग विच इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड विच विल कम एंड गो कि X leader has gave this statement or this thing. As long as it is not related to your syllabus, you did not focus on all this. For example, there is a report on chain snatching or say murder or X thing. So you need to avoid that. That is not something that is going to concern the nation. Of course, that would concern the local region. but आपको बहुत important है कि यूपीएससी को syllabus को ध्यान में रखते हुए न्यूज़पेपर पढ़ना. एक चीज और मुझे बताएं मुकुंद, एक मैं आई एम टेकिंग क्लू फ्रॉम योर लास्ट आंसर कि जब हम प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं और जब हम मेंस का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो क्या कोई पेपर अटेम्प्टिंग की भी कोई स्ट्रैटेजी होती है या लीनियर अप्रोच में एक सिरे से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाते हैं? और दूसरा चीज इसी से कनेक्टेड मैं पूछना चाहूंगा, एक अगर आईएएस टॉपर मुझे ये कहे कि उसको ये क्लियर नहीं था कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, तो ये बड़ा ही मतलब कई बार समझने में या मानने दिमाग मानने को इसे मना करता है. मैं तो ये समझता हूँ कि आप तो प्रीलिम्स आसानी से तैयारी पूरी कीजिए, पूरी जी झट के तैयारी कीजिए, जब तक हो ना जाए तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहे, पर मेरे हिसाब से तो आपको तो इट शुड हैव बीन ए केक वॉक फॉर यू. Right, sir. So, sir, here I'd like to discuss the new that the thing that goes in prelims. So, sir, prelims. I believe that if you talk to any person, and that was my experience at least. That is, it is a very risky game. Few option can put you back. और उसमें सर दो चीजें हैं. मेरा जो इंटरेक्शन से पता चला, there are some persons who are expert at prelims examination. They'll easily go up to 135, 140, and sometimes cannot make to the cannot make in the mains. Or sir, I was quite, I was 80% sure that I'll make through, as I got in discussion with some of my mentors that I'll make through. पर हुआ कुछ ऐसा था सर कि प्री का जो कट ऑफ है वो काफी फ्लक्चुएट होने लगा कुछ साल में. फॉर एग्जांपल फ्यू इयर्स बैक इट वेंट टू 116, फिर जो है 106 पे आ गई, फिर 98 पे आ गया. तो ये फ्लक्चुएशन के चक्कर में थोड़ा सा जो है एक डॉट आ गया कि शायद होगा या नहीं होगा. और टू बी ऑनेस्ट सर, मेरा जो है मार्क्स 120 से कम था. आई डिड नॉट से दैट आई वाज अबव 120. आई वाज नॉट अबव 120. वन हु इज स्कोरिंग 120. इसके अलावा सर आंसर की अवेलेबल नहीं होता. यूपीएससी डज नॉट रिलीज इट्स आंसर की अंटिल रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड. तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आंसर की रिलीज करते हैं तो उसमें बहुत फ्लक्चुएट हुआ. माय मार्क्स फ्लक्चुएटेड 15 मार्क्स. सो आई यूज्ड टू Sir, I used to fluctuate between 105 to 120 or 108 to 123. तो यहाँ 105 या 108 आता होगा, वहां पे सेल्फ डाउट आ जाता होगा. हाँ, सेल्फ डाउट आ जाता था सर कि अब कहीं अटक गए या 123. मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ. जब प्रीलिम्स का पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं, मैं जहां तक समझता हूँ 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं. यस सर. इज इट अ रेस अगेंस्ट टाइम या यू हैव सफिशिएंट टाइम? I think sir, if one has prepared well, then he would do it comfortably. That is first. And second is sir, mock test. Mock jab bhi sir, I always say that if you want to invest your money, you can invest in the quality mock test. That is very, very important. During mock, when I did around 20 to 25 mocks, 30 mocks, so I got to know कि किस time तक मैं कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ. और same thing happened with me in the UPSC. और मेरा जो सर अटेम्प्ट रहता था वो हमेशा जो है 80 से लेके 90 के बीच में रहता था, समवेयर अराउंड 85. एंड इवन इन रियल पेपर आई अटेम्प्टेड 88 क्वेश्चंस. उसमें मेरा जो है 64 के अराउंड सही हुआ और बाकी रेस्ट नेगेटिव. तो आप जब आप कहते हैं 84 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, मैं ये समझूंगा आपने क्वेश्चन तो सारे 1 to 100 तक देख लिए, पर उसमें से अटेम्प्ट किए. यस सर. क्वेश्चन आपने इंटेंशनली छोड़ दिए बिकॉज़ ऑफ सम कंफ्यूजन. तो इस 84 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक पैटर्न या स्ट्रेटजी या लीनियर वे में चलते थे? Sir, I always followed linear way. I used to go from 1 to 100. There were some techniques that I used to do. For example, if I'm able to eliminate 2 options out of 4 set, then I would take attempt of that question because that is the safest risk that you can take. So if I'm confused between 2 options, so the one I'm sure about, I'll take that. ये करना है. उसके अलावा सर इम्पोर्टेंट ये है कि द क्वेश्चन अबाउट विच यू हैव जीरो आइडिया, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि यू नेवर टच दैट क्वेश्चन बिकॉज दिस इज नॉट ए थिंग वेयर आप जो बोलते हैं कि गेस करके आप जो है यू विल स्कोर, वो जो है आपको बहुत नेगेटिव मार्क्स ले जाके
आपका पॉजिटिव भी खत्म करेगी। जीरो आइडिया वाले क्वेश्चन मैं हमेशा छोड़ता था। देयर आर ऑलवेज 10 to 15 क्वेश्चंस इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, जो आप कितना भी पढ़ाई किए हो, आपने चौथा बार दे रहे हैं, पांचवा बार, आपको हमेशा यूपीएससी विल सरप्राइज यू विथ इट्स क्वेश्चन। दैट इज द स्टैंडर्ड दैट यूपीएससी मेंटेन्स। तो आप उस ट्रैप में नहीं फंसे, आप उस लालच में नहीं फंसे कि मैं 100 कर लूंगा। तो और मुकुंद, यस सर, मेंस का भी कोई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होता है? मेंस में भी आप लीनियर ही चलते थे? मेंस में भी मैं सर लीनियर जाता था। आई यूज टू एक्चुअली सर, थिंग वाज दैट कि दो चीजें होती है। मेरा मानना था कि सर मैं होल पेपर पहले नहीं देखता था। थिंग इज दैट इफ आई लुक एट द होल पेपर एंड इफ आई डोंट नो टू क्वेश्चन, that is going to lower my confidence. So I used to take one question at a time. So I'd see first question, I'll do, then I'll jump to the second question, and if in between, if I don't know, so at least I'll have in mind that I don't know one question. But if I go through the entire paper at the beginning, at least that was my strategy. And if God forbid, if that happens and I don't know answer of four question, then at the very outset my confidence would be like, it will go very low. So in order to avoid that, I played this mind game, and I used to deal one question at a time. I used to do that. And in mains, sir, I would say that it is the race against the times. Mains is always race against the time. Last 2 or 3 questions you have to do in last 10 minutes. Howsoever fast you write, it would not be possible. It would be always like a paper chutne hi wala hai. And I would say that those people, I did complete question, and I always had in mind कि mains में पूरे question attempt करना है. Otherwise, if person leaves one question from every paper, he's already out of the race. He would be missing. He would not be competing in like he would already lose around 100 marks competition. तो वहाँ पे सर बहुत important है कि fast लिखें. और जो है, I always say that write 3 average answer rather than writing 1 extraordinary answer. Wonderful, क्योंकि wonderful. क्योंकि जब Wonderful. आप ऐसा So the करते हैं, key message, very, very important message, which I'd like to highlight, is that write 3 average answers rather than writing 1 excellent answers. So, when we are writing the examination, our aim is to maximize the score. We are not there to show that how well we can write or what is the best we can produce. But our objective is to maximize the score, and that's why it needs a proper strategy and proper mindset. राइट Now, सर। moving on to the next question. हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द मेन आंसर राइटिंग क्वेश्चंस? मतलब जब जैसे एकदम हम प्रीलिम से मेंस पे स्विच हुए, एकदम पेपर का पैटर्न एकदम बिल्कुल बदल गया, तो ये जो अपने हमारे आंसर राइटिंग है, इसको कैसे, इस स्किल को कैसे आपने प्रैक्टिस किया? सर मेंस का मैंने रूम पे रह के काफ़ी पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। जो मैं सर बार बार हाईलाइट करता हूँ, जो कॉमन इंटीग्रेटेड प्री और मेंस का ख़त्म हुआ, तो मैं प्री का टेस्ट सेंटर पे जाके प्री कर देता था। और जब रात में मैं सर ऑलवेज देयर आर सम साइट्स व्हिच दे गिव फ्रीली क्वेश्चंस फॉर मेंस प्रैक्टिस, तो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन। और मैं जो है वाइट सीट लेके दोनों साइड यूपीएससी स्टाइल में स्पेस छोड़ के मैं अटेम्प्ट करता था। And I used to get it checked by my friends who were preparing for the civil services. और मेंस होने के बाद I joined test series. I used to go to the test series center and there I used to follow the UPSC pattern. तो वहाँ पे आपसे कोई कॉपी 3 घंटे बाद छीनने नहीं आएंगे, पर I always used to put my watch and I used to think that this is the real UPSC examination that I am going to attempt, और 3 घंटे में मुझे पेपर करने ही करने हैं। तो आई वुड से दैट आई डिड से 20 मॉक पेपर, और 15 में आई कुड नॉट कंप्लीट पेपर। इट वाज लाइक डिस्पाइट माय बेस्ट एफर्ट आई यूज्ड टू लिव 3 तो क्वेश्चंस। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो उसका फ्रेमवर्क जो होता है, कि बिकॉज एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके माइंड में एक स्केलेटन होना चाहिए, तो वो फ्रेमवर्क आप माइंड में बनाते थे या वहीं पे कुछ पॉइंट्स लिखते थे या सीधा लिखना शुरू हो जाते थे? फ्रेमवर्क सर पहले से था। जब मैं रूम में प्रैक्टिस करता था, एक फ्रेमवर्क था। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव एग्जांपल सर, इन जीएस पेपर 2 जो है क्वेश्चन अगर आएंगे, तो आई वाज ऑलरेडी क्लियर, आई ऑलवेज हैड इन माइंड कि इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मेंशनिंग एनी कमिटी और आर्टिकल और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, आई विल बिगिन विद दैट। If I have some data, suppose if there is data on women empowerment, so if I have data from the United Nations organization, so I begin with that. So as per UNO report, this India ranking is this in women empowerment. Corruption, so corruption perception index, this is the ranking. So these always in every paper there are some strategy that one can use, and that framework has to be built beforehand.
beforehand. You cannot do in the paper. मुकुंद, अगर if we talk about, you know, as you said, the general studies के जो पेपर हैं वो आपको काफी कुछ कई बार प्रीलिम्स में भी देख लेते हैं, but ethics के पेपर की कैसे तैयारी करें जो कि एक तरीके से मतलब which is quite different from all the subjects. आपने Yes, sir. एथिक्स के लिए सर एक बुक है, लेक्सिकॉन करके बुक है, मैंने उसकी पढ़ाई की। और उसके अलावा सर केस स्टडीज जो है वो इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया, फ्रीली अवेलेबल, जहाँ से भी फ्रीली जो भी होता था आई यूज्ड टू लाइक सर्च एंड फाइंड आउट दैट, और आई यूज्ड टू अटेम्प्ट दैट। तो केस स्टडीज का जो है सर मैंने फिर प्रैक्टिस किया, और फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व किया। और इसके अलावा सर आई वुड से दैट देयर आर सम इंस्टीट्यूट्स व्हिच प्रोवाइड्स टॉपर्स कॉपी। सो टॉपर्स कॉपी को भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उनका क्या तरीका है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल करके। तो ये भी मैंने टेक्निक यूज किया सर। बट आई थिंक एथिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, नोबडी विल फील, वन डज नॉट फील बोर्ड व्हाइल रीडिंग एथिक्स। बहुत ही मजेदार है, और केस स्टडी तो और भी मजेदार है। तो एक बार अगर समझ जाएं कैसे टॉपर्स लिखते हैं, या खुद से भी एक तरीका बना लें, तो इजी हो जाएगा। तो मुकुंद, अब जैसे जब आपने मेंस का पेपर दिया तो आपको इस टाइम तो लग रहा होगा ना कि हो जाएगा, मेंस क्लियर हो जाएगा? यस सर, मेंस आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। आई वाज, यस सर। या प्रीलिम्स वाला ही डाउट था कि नो 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 सर, मेंस मेंस, क्लियर? yes sir, my essay paper marks are not odd, but I believe that I have done pretty well. My essay paper went excellent, my GS paper went excellent, entire GS paper 1 2 3 4 I did not leave even a single question. In optional I was caught, you know, I was थोड़ा परेशानी मुझे लास्ट मोमेंट्स पे हुआ था, लगा क्वेश्चन छूट जाएगा, but with the blessing of God I was able to attempt that question. So means I did not have iota of thought that I'm not going to clear. But then again, sir, since it is subjective, so always we have like होगा या नहीं होगा, मैंने तो कर दिया, अब उनको पसंद आए। हाँ, वो सस्पेंस और थ्रिल तो लास्ट मोमेंट तक रहता यस है। सर, यस जब सर। आपकी, तो आपको क्या लग रहा था कि ये रैंक आ जाएगी, या ये लग रहा था कि ये रैंक नहीं आएगी? सर ऐसा, टू बी ऑनेस्ट, मुझे था कि मुझे जो है आईपीएस का जो रैंक होता है 200 के अंदर आ जाना चाहिए। मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया, और इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया। इट्स दैट आई वाज, तैयारी किस तरीके से की मुकुंद आपने, मतलब कोई खास टिप्स हैं या? यस सर, इंटरव्यू की कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डैप भरते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल्सो कॉल्ड बायोडेटा, you have to be very honest in that. Whatever you have written, that has to be genuine, and you should know about that. So if I was from Sainik school, we used to have NCC camp, and we used to have firing event every year. So we used to shoot target. So I had to know what are the guns I used, what was the round of bullet, what are the precaution one takes while shooting. Suppose I participate in college, I participated in essay writing competition and I won prize. So I have to know what was the topic. So that is something that one has to be very honest. One has to thoroughly understand whatever he or she has written. और इसके अलावा करंट इवेंट्स का ध्यान रखें, जो भी हैपनिंग हो रही है, नेशनल इश्यूज, लोकल इश्यूज, आपके डिस्ट्रिक्ट से, उन सब तमाम चीज़ों का ध्यान रखें। And it is very clearly said that interview, UPSC in its notification has written that interview is not a test of your knowledge. Your knowledge has already been tested through mains examination. It is test of your personality. So it is very important to keep that factor in mind, that you are not going to be tested for knowledge. I did not know answer to 3 questions. I very pleasantly I said that sorry sir, I do not know, I'll read about this. So they are checking your personality. One has not, you know, one does not have to get terrified if he or she does not know answer. So these general things have to keep in mind. कोई ऐसा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो अपने आप में इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आपको लगा कि शायद आफ्टर थॉट्स की शायद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं देना चाहिए था या दूसरा देना चाहिए था? कोई इंटरव्यू के दौरान कोई इंटरेस्टिंग, कोई लाइफ मोमेंट, कुछ ह्यूमर वाली कुछ बात, कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस? सर कुछ क्वेश्चन थे सबसे पहले जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। आई न्यू बट स्टिल आई डिड नॉट, आई थॉट दैट मे बी आई एम नॉट श्योर। सपोज आई वाज आस्क्ड पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, तो I could not answer that despite knowing that it is somewhere between 900 to 1000 kilowatt per hour, something like that. So I did not answer that. इसके अलावा इंटरेस्टिंग सर मेरा इंटरव्यू मुझे लगा कि काफी इंटरेस्टिंग था, as my background was very diverse. I come from Bihar, studied in Assam, then went to Delhi, and I participated in lot of NCC events.
and I was somebody who was from military school and joining civil services. तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बार बार ये आ रहा था कि आर्म फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किए, और सिचुएशनल क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा गया सर. सो आई वाज मेड secretary of social justice and empowerment, and then I was asked to promote communal harmony. Then they asked me, Mukund, tell me one good thing about Delhi and one bad thing. So in good thing I said that it is very culturally diverse, cosmopolitan nature, and bad thing I said that pollution is a major issue, especially during winter time. So instantly members sir asked me that, Mukund, now you are secretary of environment and now you have to solve this problem. So then I was like, the moment I answered, and I never thought that this will happen. So that was, I took pause of few seconds, I smiled, and then I thought that now that I'm secretary, I have all the power. So I'll use all my power to solve that. So I gave them answers. So it was pretty smooth, sir. And there was not, I will not say that there was any bizarre or a strange question. What is that, Mukund, the panel is trying to judge? What is that the panel is trying to find in you? What is that, as you said, that the panel is not trying to test your knowledge? What is that they are trying to check? Yes, sir. So, sir, as per my limited knowledge, I'm not expert on this subject, but as per my experience, I'd say that there are some qualities that UPSC in its notification has mentioned. For example, balance of judgment, intellectual integrity, and there are some more qualities, leadership. So that I think candidate are tested and marked on those qualities, that everybody knows that one who joins civil services is always, a head of one or another institution, head of district, head of police department, and it is a huge responsibility. So they are going to check those traits. So as per my experience, sir, when they were making me secretary of X and Y department, so I was knowing that they are, since I'm not I'm 22 years of old, so they were trying to understand whether he is mature enough. That was one. Apart from that, he was trying to check my leadership qualities. So I made him leader. He is now secretary. He has all powers. Now let me check what are the steps he are taking, whether he is taking steps which are like the leader, or it is very common steps. So that he has to check. Balance of judgment. Being a civil servant, it is very important that you listen to both sides of the story. We do not have to rush to the judgment. So we have to listen to the both sides, then we have to analyze the situation, and then we have to deliver our verdict on that. So balance of judgment is very important. I would say never take side. So for example, if you are given to choose between Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar, or Nehru or Patel, so who contributed most? So this is a place where you have to take a stand, that you cannot say that Gandhi ji or Pandit ji contributed more, because everybody contributed. That is the aspect that you have to clear, and balance of judgment. Everybody contributed in their own way, and everybody contribution is genuinely in the nation making. So that is what I'd say. So I would sum it up. As far as the interview experience is concerned, as Mukund just shared that he was made before even getting selected, he was made secretary, and that too not of one department, of many departments. Yes, sir. So, what I understood from what just Mukund said, it is all about what they're trying to check probably is it is all about ability to think both critically and creatively in front of new situation. I think that is what they're probably trying to check. And that's what I understood from Mukund. So Mukund, tell me last few questions, what message, and this question comes straight from my heart and straight from the heart of lakhs and lakhs of, there are lakhs and lakhs of students for whom education is the only way to make big in life. And I am sure you must be aware that there are students who prepare, not only for 1 year, but for 3, 4, 5, 6 years. What message? सबसे पहले मैं कहूँगा कि हिम्मत कभी भी नहीं हारना है. To be honest, I would somewhere say that I was blessed enough to get in first attempt, but I always had in mind that I'm not going to give up even till my last attempt. और जो जैसा कि जो नहीं निकाल पाते हैं, मेरा भी मानना है कि ऐसा नहीं है कि नॉलेज में कमी रह गई. कुछ चीजें होती हैं जो उस दिन शायद आप
परफॉर्म नहीं कर पाए, दैट वाज नॉट योर डे, यू कुड नॉट परफॉर्म, तो हिम्मत कभी भी नहीं हारना है, अपने लक्ष्य के पीछे जो है वही डेडिकेशन से तैयारी रखनी है, दैट इज वन से। सेकंड मैं कहूँगा कि जो स्पेशली फॉर समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, आई एम आल्सो फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, तो आपको या हिंदी मीडियम से है या किसी भी इस तरह की जो है आपके जो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो नहीं रखना है। इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम विलेज और सिटी और मेट्रोपॉलिटन, वेदर यू आर इंजीनियर or your humanities. In my opinion, sir, UPSC is a very fair examination. It will give equal, it gives equal opportunity to everyone to qualify. और आप अपने प्रिपरेशन में फाइन ट्यूनिंग करके आगे बढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तीसरा सर मैं ये भी कहूँगा, आई वुड से दैट आपको जो है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क पे बिलीव रखना है और अपने आप में, औरों से पहले आपको अपने आप में विश्वास रखना पड़ेगा। मेरे अंदर सर अगर आप बोले कि कुछ खासियत, तो एक चीज जो हमेशा से थी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं किसी से कम नॉलेज है या रिसोर्स की कमी है। हर चीज को आप कुछ कमी में भी आपको अपने अपना जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको बनाए रखना है। यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम हॉल में काम देगी। जो प्रीलिम्स का जो लास्ट 15 मिनट होता है वो बहुत रेस्टफुल होता है, आप सोचेंगे ये अटेम्प्ट ले लूं, ये अटेम्प्ट ना लूं। मेंस का जो होता है, तो यही आत्मविश्वास आपको डटे रहने और टिके रहने का जो है साहस देगा। और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, निरंतर बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहना है। और इफ गॉड फॉरबिड, आई होप दिस डज नॉट हैपन विथ एनीवन, but if because of any reason you exhaust all your attempt, you do not make, or say that never get disheartened. You are the person who is very knowledgeable, you have done UPSC, you have appeared at UPSC exam so many times, you are very courageous, और आप किसी भी फील्ड में रह के आप जो है नेशनल सर्विस कर सकते हैं और जो है सोसाइटी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू वुड ऑलवेज एक्सेल इन योर फील्ड, दैट इज माय मैसेज। But before that, always give your best attempt, and I'm sure, sir, everybody will qualify and will make through this examination. So very well said, Mukund. Apart from studies, apart from studies, whatever, how do you spend your leisure time? Any hobbies? Yes, sir. So, sir, my hobbies was watching movies and television shows and reading non-fiction books. So, since in literature I read a lot of fiction books, so non-fiction I started reading. So, somewhere I was trying to read books which are relevant with the governance. For example, I read Incredible India 2.0 by Amitabh Kant, CEO of Niti Aayog. Apart from that, I used to read biographies, so be it of Mahatma Gandhi or former IAS officers. So I used to read that. That used to, keep me in touch with the exam preparation, and also used to make a moment lighter. So that I used to do. And movies, I'm big fan of movies. So I used to, even during preparations or somewhere, I used to take out time and watch at least one movie every week, even sometimes two movies. Every week. So every week. So I used to try. That's very important thing. I have seen Yes. a lot of students and parents saying that they उन्होंने टीवी का कनेक्शन कटवा दिया है, No. केबल कटवा दिया है, ऐसा. So here is a UPSC topper. Here is a UPSC topper, and it directly come from the horse's mouth. He's saying that he used to watch 2 movies a week. Yes, sir. And one more thing I would highlight, sir, from our conversation that is coming out, जो पहले जो बातें थी आपको बंद कमरे में 18 घंटा 20 घंटा, उस चीज को आप बदलना है। ऐसा अब नहीं रहा। अब जो है आप जो सर जैसा कि आपने बताया, मैंने भी बताया, 6 से 8 घंटा रिलीजियसली करके और अपने आप को जो है आप कनेक्ट रखें। सोशल मीडिया मैं भी बंद किया, पर ऐसा नहीं था सर कि आई वुड बी लाइक ऑफ फॉर 2 years, आई नॉट अटेंड एनी family function, something like that. Pre और मेंस के टाइम में आई वुड से दैट अटेंडिंग वुड बी क्वाइट फुलिशनेस, क्योंकि वो टाइम बहुत प्रीसियस होता है। पर जनरल टाइम में आप इंजॉय कीजिए, दोस्तों से मिलिए, घूमने भी जाइए बाहर। इससे इनफैक्ट मेरा मानना है सर कि पढ़ाई प्रोडक्टिव होता है। पर अपने टारगेट को पूरा करने के बाद, ऐसा नहीं कि आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं और 2 घंटा पार्टी कर रहे हैं। 6 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, उसके बाद घूमिए फिरिए, सोशल मीडिया भी यूज कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। That was what I did, sir. So that was so inspiring, Mukund. That's it. So this session comes to an end, and it was all my pleasure. And in the last 60 minutes that I've spent with you, it has not only inspired me. I have learned hundreds of life lessons from you.
And we would try our level best on behalf of Disha publication. I make a promise that we'll take your message to lakhs of students, and I'm sure it will create a great impact on the lakhs and lakhs of students who are preparing for any kind of competitive examinations, and probably help them in achieving their goals. Thank you, Mukund. Thank you. Thank you very much, sir, for this discussion.